Hello and welcome to News Rush by Nicobar Times. The residents of Andaman Nicobar Islands are the ones who pay the highest cost for broadband internet in the entire country. BSNL is currently the sole provider of FTTH and ADSL broadband services in Andaman Nicobar Islands. Airtel will soon launch its Extreme Fiber services in Port Blair area. BSNL FTTH services are available today in almost all islands connected through Chennai, Andaman and Nicobar Islands submarine optical fiber cable. In Andaman Nicobar Island, BSNL offers FTTH plans starting from Rs 799 excluding GST. The Rs 799 FTTH plan offered by BSNL provides the user with 60 GB data for the entire month at the speed of 10 Mbps, after which the speed is capped to 512 kbps for any additional usage for the entire month. In almost all other states, BSNL FTTH plan starts at Rs 599 exclusive of GST. The 599 plan provides the user with 3300 GB of data per month at speed of 60 Mbps, and for additional usage the speed is capped to 2 Mbps. In Andaman Nicobar Islands, the highest denomination FTTH plan available is of Rs 7999. The plan provides user with 50 GB data per day at speeds up to 100 Mbps, and the speed is capped to 4 Mbps for additional usage for the entire day. In almost all other states, the highest denomination FTTH plan available is of Rs 1499. The plan provides user with 4000 GB of data per month at a speed of 300 Mbps, and the additional usage is capped at 4 Mbps for the entire month. The high-speed data provided in highest denomination FTTH broadband plan available in Andaman Nicobar Islands is less than 50% of the data provided in the lowest available FTTH broadband plan in other states of India. Many customers of BSNL have vocally spoken out against the company for charging such unreasonable tariff for its broadband internet services. Airtel will soon launch its Extreme Fiber internet in Port Blair, and according to the sources within Airtel, its plan will be 10 times better than the plans of BSNL. The sources also informed us that after completing the commissioning at Port Blair, Airtel will expand its Extreme Fiber services to other islands which are connected through Canny submarine overseas. Nicobar Times spoke to some customers of BSNL Andaman Nicobar Island Telecom Circle. Let's hear in what they have to say. नमस्कार। निकोबार टाइम्स का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके हमारे पास आए हैं, और एक ऐसा टॉपिक है जो कि एट द नीड ऑफ आवर, एट दिस टाइम ऑफ नीड ऑफ आवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन होगा, और हम बहुत कुछ बातें शेयर करेंगे आपके साथ जो हमारे नॉलेज पे हैं। तो पहले धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक को लेके ऊपर आए हैं। जैसे आपने कहा, BSNL का दो स्कीम चल रहा है, जैसे ब्रॉडबैंड ले लीजिए या FTTH। उसके विषय पर अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे, हम लोग कंपेयर टू मेनलैंड बहुत ही ज़्यादा हम लोग डाटा वाइज, जो फैसिलिटी वाइज बहुत ही हम लोग पीछे हैं, हम लोग बैकवर्ड है। वैसे ही हम अंडमान निकोबार बैकवर्ड है, हमारे इसका हिस्सा जस्ट 20 years बैक डेवलपमेंट पर। एंड बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द BSNL जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि नेटवर्क कवरेज करने के लिए, उस विषय में भी अगर आप जो रिसेंटली आपने FTTH का जो BSNL ने स्टार्ट किया है वो हो ले लीजिएगा या ब्रॉडबैंड ले लीजिएगा, दोनों तरफ से पीपल अफेक्टेड ही है बेस्ड ऑन द डाटास। जैसे अगर आप ब्रॉडबैंड ले लीजिएगा वो उनका 150 GB तक जा रहा है उनका, और FTTH का 120 GB तक जा रहा है। सर 150 GB वाला जो है वो 999 का प्लान यस, वो आप 999 के प्लान आप यूज़ करते हो? जी, मैं यूज़ कर रहा हूँ NNN प्लान वाला, और उसका ही मैं डाटा बोल रहा हूँ, तो आपको 150 तक दे रहे हैं वो, और उनका इंस्टॉलेशन उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू FTTH जो कि प्राइवेट को उन्होंने दिया है। इसलिए तो सर आपने पहले FTTH भी यूज़ किया था, तो FTTH के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ा? कम 7000 इंस्टॉलेशन, नियरली इंस्टॉलेशन के लिए मुझे 7000 देना पड़ा, और तो भी ज़्यादा ही है कंपेयर टू द मेनलैंड चार्जेस, बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं हम लोगों से। और सर जहाँ तक है बात कि रेनी सीजन में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। यस यस, ऑब्वियसली रेनी सीजन अगर आप ले लीजिएगा, नॉट ओनली हम लोग का ब्रॉडबैंड, आपका हर नेटवर्क यहाँ क्लोज हो जाता है, एवरीथिंग इवन इलेक्ट्रिसिटी हमारा यहाँ क्लोज होके पड़ा है। तो ऑब्वियसली नेटवर्क भी हमें इतना ही पुअर है। ये इस वजह से जो हमारा जो यूथ्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अफेक्टेड है, और इस अफेक्टेड के वजह से, इस रीज़न के वजह से बच्चों का पढ़ाई वैसे ही डल है, और ड्यू टू दिस डाटा का जो प्रॉब्लम है जो उन्होंने BSNL की तरफ से जो चल रहा है, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर स्टडीज़। 2 सालों से बच्चों को पढ़ाई तो नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ा देंगे, पढ़ाइए ऑनलाइन,
नेटवर्क के बिना क्या पढ़ाएंगे आप सब? जो टीचर्स वहाँ से बेचते हैं PDF के फॉर्म पर, जो एजुकेशन का जो कंटेंट्स होता है स्टूडेंट्स तक कहाँ पहुँचता है? जब डाटा ही ठीक नहीं है आपका तो कहाँ तक पहुँचेगा? तो बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा? वैसे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एजुकेशन के बेस पर। इस विषय पर मैं अलग से आप सबसे बात करूँगा, लेकिन जब डाटा का बात हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस लो डाटा जो प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका FTTH ले लीजिएगा या 999 ब्रांड में ले लीजिएगा, इसका जो स्पीड इतना स्लो है और रेट भी इतना ज़्यादा है कि कोई भी पुअर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और जब डिजिटल इंडिया का बात जब चल ही रहा है, तो डिजिटल इंडिया को जब अगर आपको डेवलप ही करना है तो आप पब्लिक के साथ जाइएगा, पब्लिक का इनको इकोनॉमी देखिएगा, उनका इनकम देखिएगा, उसके हिसाब से आप एजुकेशन दीजिए, देन इट विल बी वर्कआउट फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर एवरीवन। एंड अगर आप मेलैंड का अगर बात किया जाए, जब मैंने रिसेंटली विजिट किया मेलैंड पर, आप नहीं मानेंगे BSNL का जो स्पीड है इतना अच्छा है विद द लो प्लान में भी। आप 199 या 2999 ऐसा कुछ प्लान है वहाँ पे, इतना अच्छा है मेलैंड का। जैसे मैंने आपको बात बताया है, वहाँ पे आप नॉर्मल टू नॉर्मल एकदम मिनिमम प्लान पर आपको मिलेगा 3 to 4 MB। मैं बता रहा हूँ मिनिमम चार्जेस पर। अगर आप 199 का अगर आप रिचार्ज कर रहे हो मोबाइल में, आपको 3 to 4 MB तक मिल रहा है। तो बात बताइए, अगर 999 प्लान होगा मेलैंड का, कितना GB आपको बढ़ सकता है कि नहीं? सर हमारा और एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पर तो चलो कैसा ना कैसा हमें मतलब कुछ ना कुछ करके हमें मतलब हो जाता है, मतलब नेट खुल जाता है। बट सर इंटर आइलैंड में बहुत ही बड़ा दिक्कत है सर, क्योंकि वहाँ पर लोगों को कहाँ जाके सर वेट करना पड़ता है। वहाँ पर कोई मतलब नेटवर्क वहाँ पर तो मतलब फ़ोन का नेटवर्क ही इतना स्लो है। तो जहाँ तक देखा जाएगा तो FTTH प्लस ब्रॉडबैंड वहाँ पर तो और भी मतलब बहुत ही दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है बच्चों को, और जो कि ऑनलाइन क्लास है। तो सर इस विषय में आप भी कुछ बताइए सर। इसके बारे में मैं क्या बताऊं? इसके बारे में देखिएगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खुद इसके ऊपर काम लेना पड़े, इसके ऊपर आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट रखता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारा नॉट ओनली कि हमारा साउथ अंडमान बोर्ड पेयर को ही ध्यान दे, मैं रिक्वेस्ट रखता हूं कि पूरे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को कि इंटर आइलैंड को भी आप अच्छी तरह इंटर कनेक्टिविटी कीजिएगा नेटवर्क से। आप ले लीजिएगा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, रंगत ले लीजिएगा या निकोबार आइलैंड ले लीजिएगा। यहाँ नॉट ओनली आप ज़्यादा से ज़्यादा बाराटांग ले लीजिएगा सर। वहाँ तो सर कई दिनों तक नेटवर्क नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं। इवन आपका मोबाइल ही रिसीव नहीं हो रहा है तो आप बता दीजिए फिर नेटवर्क का फिर बिजनेस जो चल रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस विषय पर थोड़ा ध्यान दे। लूट तो हर जगह पे चल रहा है, बट मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही मानता हूँ मैं, क्योंकि आज तक मैंने जितना भी रिक्वेस्ट रखा है एडमिनिस्ट्रेशन उनको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं। मैं अभी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट ही रखता हूँ कि प्लीज़ करके, अगर आप चाहते हैं हमारा आइलैंड का यूथ का डेवलपमेंट हो, इस तरीका का जो आप डिजिटल इंडिया को आप डेवलप कर रहे हो ना, आप इंटर आइलैंड सारे आइलैंड में आपको जो नेटवर्क का जो कनेक्टिविटी का ना, इसको प्लीज़ फ्रैंकली विदाउट एनी करप्शन, मैं जो वर्ड यूज़ किया करप्शन मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ ओनली फॉर द यूथ का डेवलपमेंट। अगर यूथ डेवलप होना है तो आपका गवर्नमेंट का तरफ से जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना जो नेटवर्क पे, इसको आप फुल फ्लेज्ड 100% दीजिएगा सर प्लीज़। क्योंकि आप ये मत सोचना कि बोट पेयर में ही यूथ हैं, आपका नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिना कोई नेटवर्क के पढ़ रहा है। आपको मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स, मैं एक कोचिंग चला रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पे फ्री पढ़ा रहा हूँ। मैं आप नहीं मानेंगे, वहाँ के जो बच्चे हैं ना, एक पन्ना अगर मैं पढ़ा दूँ ना, एक पूरा बुक को पढ़ के मेरे को शाम तक वो रिप्लाई देते हैं विदाउट कोई नेटवर्क का इशू। मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि हमारा आइलैंड का यूथ आप कम मत समझिएगा, इतना टैलेंटेड बच्चे हैं, इतना टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर आप मेलैंड का फैसिलिटी आप 1 घंटा दीजिएगा, मैं बता दूँ वर्ल्ड का लीडर बन जाएंगे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे यूथ्स। मैं अपना आइलैंड के बारे में, यूथ के बारे में जब भी बात करता हूँ ना, मेरे ऊपर खून उबलने लगता है। इसलिए उसके लिए मैं डेडिकेटेड हूँ। मैं अब अपना यूथ्स को मैं आगे लेके आना चाहता हूँ। अगर उसका जो फैसिलिटी में अगर कोई वीकनेस आ जाए, कहाँ डेवलप होएंगे यार। आप रिसेंटली जितना भी रिक्रूटमेंट चल रहा है उधर ही आप ले लीजिएगा। हर तरीका, हम आइलैंड का स्टूडेंट्स तो का लिस्ट में है ही नहीं नाम, बाहर का मेलैंड का नाम आ रहा है, तो हम लोग आइलैंड का डेवलप का होगा, यूथ कहाँ डेवलप होंगे। कनेक्टिविटी कीजिए, नेटवर्क का भी अगर कुछ आजकल सर कुछ भी फॉर्म फिल करना है तो ऑनलाइन है, बट सर यहाँ के लोग कैसा कर लेते हैं। बट सर फॉर एग्जांपल मैं अभी जस्ट एक बात बता रहा हूँ, अभी जस्ट एक कॉलेज एडमिशन का ही अगर आप ले तो इंटर आइलैंड वाले नहीं कर पाएंगे। क्यों कि सर वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है। तो उस
2006 में क्या है, कॉलेज वाले ने मतलब डेट को डिले की है कि तो थोड़ा मतलब और दिन के बाद मतलब कर लेंगे। तो सर ये सब तो सर BSNL के चाहिए होता है सर। हाँ देखिए, बात तो आपका इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये सब, कनेक्टिविटी। अगेन मैं वही प्लेटफॉर्म में आना चाहता हूँ। अगेन कनेक्टिविटी अगर जब तक नहीं होगा, आप ना फॉर्म फिल कर पाएंगे, ना आपको जॉब में आपको कोई रिक्रूटमेंट होगा। क्योंकि आपको पता ही है जितना भी रिक्रूटमेंट है ऑनलाइन हो रहा है। आप बोर्ड प्लेयर का आदमी अगर बनेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, नॉर्थ मिडिल। सर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी मांग कीजिए और BSNL वालों से कि पैक का रेट थोड़ा कम कीजिए सर। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू द BSNL। आप जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, आप प्लीज़ करके आपके जो प्लान का जो रेट है हमारे लेवल के लेके आइए। हमारा लेवल बहुत कम है, हम गरीब है, हमारा इकोनॉमी डाउन हो चुका है ड्यू टू वेरियस लॉकडाउन्स एंड बिकॉज ऑफ कोरोना। आप लाइए, कम लाइए, और इसका जो डाटा का जो फैसिलिटी को बढ़ाइए, और इसका जो कैपेसिटी है, जो हम मेगाबाइट गीगाबाइट में जो हम बोल रहे हैं, हम आपको 150 गीगा जो बोल रहे थे, उसको आप और आगे बढ़ाइए। सर मेरा नाम विशाल है, मैं फोनिक्स पे क्षेत्र का निवासी हूँ। तो सर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में BSNL का ब्रॉडबैंड जो कि पूरे देश में सबसे महंगा है, तो इस BSNL ब्रॉडबैंड के प्लान से आप खुश हैं या FTTH प्लान से आप खुश हैं? आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर BSNL और FTTH का जो आपने आज मुद्दा उठाया है, तो उस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में, चेन्नई हो गया एक्सेट्रा कहीं भी, तो उनके कंपैरिजन में हमारा अंडमान निकोबार में जो FTTH का जो इंस्टॉलेशन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत मीन्स 6000 में भी 7000 के अंदर इंस्टॉलेशन होता है आपका, और प्लानिंग वो अलग है। आप जितने जैसे 1000 जो भी है उसके ऊपर जितने GB यूज़ करोगे उसके बेसिस नहीं है। और BSNL का जो आप कह रहे हैं, BSNL का आपका इंस्टॉलेशन का प्राइस कम है, लेकिन उनका जो आपका सुविधा है और कुछ रिपेयरिंग होने से, कुछ प्रॉब्लम होने से उनका इतने जल्दी वो नहीं होता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि BSNL का प्राइस कम है, बट उन लोग का फैसिलिटी इतना थोड़ा सा ठीक नहीं है बस। मतलब BSNL आप ब्रॉडबैंड के बारे में कह रहे हैं, और आपने अपने घर में FTTH लगाया है? जी मैंने BSNL का लगवाया है। हाँ। FTTH भी मैंने यूज़ किया है। हाँ। मैंने FTTH भी यूज़ किया है। FTTH आपने किसके थ्रू लगवाया था? सर मैंने लगवाया था वहाँ केबल जो लोकल केबल ऑपरेटर के द्वारा। तो कितने में आपने लगवाया था? सर मैक्सिमम आपका 6000 राउंड ऑफ हो गया था। तो उसमें आपने मतलब उसमें आपको स्पीड मिल रहा था उसमें? सर स्पीड तो मिल रहा था। Today, BSNL is the sole provider of FTTH and other broadband services in Andaman Nicobar Islands. And the customers feel that BSNL is able to charge such high prices from customers because of its monopoly. The residents of these islands are eagerly waiting for a competitor to arrive so that they can switch their service provider and get better price and services for their broadband needs. In the present scenario, it is extremely difficult for the general public and businesses to afford costly broadband internet provided by BSNL. People from the remote islands such as Campbell Bay are demanding free Wi-Fi hotspots to be installed so that students can attend online classes. The mobile internet services of BSNL is also not up to the mark in remote islands, because of which residents who have the purchasing power are forced to install FTTH broadband connections in their homes by paying the high cost of installation as well as high monthly price for the services. Overall, the practice of BSNL to charge such high prices for broadband internet services is unfair to the islanders of Andaman Nicobar Islands, and steps should be taken to bring the price of BSNL broadband services in the islands at par with mainland India. Lakshadweep, even after being an island group, enjoys the same FTTH plans of BSNL as available in mainland India. It is very essential that the cost of BSNL broadband is brought down in Andaman Nicobar Islands for the convenience of the general public. Andaman Nicobar Islands is an integral part of India, and the organizations like BSNL should start treating us at par with mainland India.